Let us start with next question, question number 89th, 2019 JEE का question है ये. In the given circuit diagram, the currents I1, so I1 over here, आपको I1 की वैल्यू दी है, it is minus 0.3 ampere. I4 is 0.8. Where is I4? I4 is here, 0.8 ampere. I5 कहाँ पे है? I5 is over here, 0.4 ampere are flowing as shown in the figure. The currents I2, I3 and I6. आपको I2, I3 और I6 फाइंड करने के लिए बोला है. क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है दिस. यू कैन सॉल्व दिस डायरेक्टली. कैसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे? जंक्शन लॉ अगर आपको याद होगा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. I4 करंट इज एंटरिंग जंक्शन S और यहां से उसका स्प्लिटिंग हो रहा है. तो यू कैन से दैट I4 is equal to I5 plus I3. Okay, then from here you will have I3 equal to I4 minus I5. I4 as you know, I4 आपके पास कितना है? I4 is 0.8 and how much is I5? 0.4. तो ये आ गया आपका 0.4 एम्पियर. लेकिन यही I5 P पॉइंट से आगे जाएगा तो उसको I6 बोला है. तो फिर I5 and I6 are equal. Okay, so but you can say I5 equal to I6 and therefore I6 is also 0.4 ampere, right? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट डन. इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आपको फाइंड करना है, क्या रह गया? I2, you have I3 0.4, you have I6 which is again 0.4. वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 0.4 and 0.4, ऑप्शन नंबर A, right? But फिर भी let us solve for I2. How do you find out I2? I3 plus I6 is equal to I2 plus I1. So at junction Q you have I3 plus I6 is equal to I2 plus I1, right? आपको फाइंड करना है I2. So I2 here, I2 आपको मिल जाएगा, दिस इज I3 plus I6 minus I1. I3 की वैल्यू आपने अभी भी फाइंड की, 0.4 प्लस I6 की वैल्यू इज हाउ मच? I5 and I6 are equal, 0.4 minus of minus 0.3, 0.4, 0.4 and 0.3, 1.1. तो ऑप्शन नंबर ए. तो कुछ नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करना है. दैट्स इट. कहां से करंट आ रहा है, कहां जा रहा है, दैट्स ऑल यू हैव टू सी. सो क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली सिंपल. आपको सिर्फ करंट के डायरेक्शंस देख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो अगेन यू आर सपोज टू फाइंड आउट I2, I3, I6. मतलब I3, I2 और I6 फाइंड करना है. I5 और I6 तो सेम इक्वली है, बिकॉज you have this I5 is equal to I6. तो I5 और I6 इक्वल आएंगे, मतलब 0.4 आएगा आपके पास. एंड देन ऑफ कोर्स आपको I3 भी फाइंड करना है. तो ये जो I4 करंट था ये I5 प्लस I3 होगा. तो I4 is I5 plus I3, तो I3 is I4 minus I5, and at Q I6 plus I3 is equal to I2 plus I1. तो सॉल्व करो and you will get your required answer. Let's move to next question. 90. For the circuit shown with R1 1 ohm, R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू 2 ohm, E1 is 2 volt. So better I will put down values here. R1 is 1 ohm, R2
R2, अच्छा ये डायग्राम इज एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग हियर, ठीक है देखते हैं बाद में। R2 is 2 ohm, E1 is 2 volt, E2 and E3 they are 4 and 4 volt. The potential difference between the points A and B approximately is, तो आपको A और B इस points में you are supposed to check what is potential difference. By the way, AB में या फिर यहाँ पे 2 पॉइंट दिए होते हैं CD में, या फिर यहाँ पे और सर्किट को एक्सटेंड किया होता और यहाँ पे किसी और ब्रांच के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला होता, तो याद रखना ऐसे केसेस में all the cells are in parallel, as you can see, ये जो आप cells देख रहे हो, all these cells E1, E2 and E3 they are in parallel. For parallel combination of cells, potential between 2 points is directly equivalent potential is equal to EMF of cell 1 by R1 plus EMF of cell 2 by R2 plus EMF of cell 3 by R3, so on so forth, upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ऐसा एक जनरल फॉर्मूला यूज करना है आपको, सिंपल, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि R1 हर जगह पे R1 प्रिंट हुआ है, वी हैव टू करेक्ट दिस। सो जस्ट अ मिनट, let us look at the correction. So R1 1 ओहम दिया है, R2 2 ओहम दिया है और हर जगह पे 1 1 R1 प्रिंट हुआ है। So just a minute, let me correct the question. 2 4 by 2, this is R1, here it should be R2 and this should be R2 या R3 जो भी है, so it's the same. Okay, so this is equal to, okay, तो ऊपर का doesn't matter, so we'll see this thing later. So by the way, question is wrongly printed. First of all, question is not correctly printed, but anyways we will get a solution to this also. So E1 की value, what is E1 value? 2 upon what is R1 value? 1 plus what is E2 value? 4 and what is R2 value? 2. What is E3? 4. What is R3 again? 2 upon 1 by R1, 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 again. So this is 1 by 2 again, right? करेंगे हम, just a minute, we will see where is what is going wrong in the question, correct कर लेंगे पहले। let us move to the answer first. 2 plus 2 plus 2 6, correct नहीं है, I know this, but just a minute. 1 plus half 2, that is 3, correct. प्रॉब्लम कहाँ है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है तो अब क्या करेंगे? देखो, इन रियलिटी क्वेश्चन इज करेक्ट। कैसे? आपको यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू दी है, सिर्फ R2 प्रिंट नहीं हुआ, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। सो दिस इज R2, ये R1 और ये R1 सीरीज में है, तो ये 1 और ये 1 ओहम, टोटल 2 ओहम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इज 2 ओहम, ये 1 और ये 1, सो इक्विवेलेंट इज 2 ओहम। तो R3 इज आल्सो 2, R1 इफेक्टिव मतलब टोटल इस ब्रांच का, इसको मैं R1 डैश बोल देता हूं, दैट इज आल्सो 2, R1 प्लस R1, क्योंकि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और यहां तो डायरेक्टली R2 एक ही है, दैट इज 2 ओहम। जिसको नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूं, this R1 and this R1 they are in series, क्योंकि they belong to the same cell, that is why they are in series. तो ये याद रखना। so effective is 2 ohm over here। यहाँ पे ये R1 और R1 मिलके बन गया R3,
राइट, 1 + 1 वापस से 2, तो ये 2, ये R2 भी 2 और दिस इज ऑल्सो 2. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा कर सकते हो बाय द वे, इसको लिख सकते हो अब E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू 2, so you have a 2 over here, so E1 is 2. इफेक्टिव R1 कितना आया 2, 2/2 प्लस E2 कितना था, E2 कितना है 4, R2 कितना है 2 प्लस व्हाट इज E3, E3 4, व्हाट इज अगेन इफेक्टिव R3 2 अपॉन 1/R1, what is effective R1 2, 1/2 plus 1/R2, what is R2 again 2 plus 1/R3, what is R3 again 2, right? तो ये आ गया आपके पास 1 + 2 + 2 मतलब न्यूमरेटर में 5, हाफ 3 बार मतलब कितना 3/2, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 आएगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा 10/3, 10/3 is 3.33, ऑप्शन नंबर बी, राइट. तो कभी कभी वो R1 देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे R2 प्रिंट होना चाहिए था, वो प्रिंट नहीं हुआ, दैट्स इट. All right, so let us quickly look at series and parallel combination of cells, which you were supposed to cover in 11th standard. But anyways, अगर आपके पास n cells है in series, हर एक का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर, तो ऐसा अगर आपके पास है, दिस इज E1 R1, E2 R2, E3 एंड R3, तो टोटल मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज विल बी E1 + E2 + E3 + E4 जितने होंगे, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 + R2 + R3 + R4 जितने भी आपके पास सेल्स होंगे. एडवांटेज इज कि अगर मैं 10 वोल्ट के 10 सेल लगा देता हूं तो मुझे इक्विवेलेंट मिलता है 100. डिसएडवांटेज, इसमें से एक भी सेल खराब हो गया तो गया, इट कैन नॉट बी यूज्ड क्योंकि सर्किट विल ब्रेक ओपन. सपोज सेकंड सेल खराब हो गया, सेकंड सेल खराब होना मतलब दिस इज गॉन, ओके, तो ये चलेगा नहीं है, राइट. गुड. in parallel, if you have in parallel, you can have cells in parallel, so you can have some cell with internal resistance in parallel. तो यहां पे इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, अभी मैंने बताया हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट. This formula E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 and so on so forth. Let us take an example. 10 वोल्ट और ये 1 ओहम, 10 वोल्ट 1 ओहम, 10 वोल्ट 1 ओहम, so on so forth. जितने होंगे उतने, राइट. तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E2, यस करेक्ट. और सपोज 3 ही है तो 1/1 + 1/1 + 1/1, सो दिस इज 30/3 मतलब डजंट मैटर अगर आपने 10,000 लगा दिए 10 वोल्ट के तो भी इक्विवेलेंट विल बी स्टिल 10. तो सीरीज का एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्टिव वोल्टेज विल बी सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल. बट डिसएडवांटेज, एक भी सेल खराब हो गया तो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो दिस बैटरी विल बी यूजलेस. यहाँ पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इन सब में से एक खराब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर इफ आई रिमूव वन, मैंने इसको हटा दिया क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग. मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग,
क्योंकि देन 10 + 10 यहाँ पे और एक 10 आएगा न्यूमरेटर में, नीचे और एक 1 आएगा, तो 40/4 अगेन 10, राइट। बट डिसएडवांटेज, आप कितने भी पैरेलल में लगा दो, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ओके, सो ये याद रखना, दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इफ यू रिमेंबर, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग याद होगा आपको, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। बाकी का जरूरत नहीं है हमको, बाकी मल्टीप्लायर, टॉलरेंस वैल्यू, वी डोंट नीड इट, राइट। आगे क्या बोला है, यू हैव अ 200 ओहम रजिस्टर हैज अ सर्टेन कलर कोड, सर्टेन, आई डोंट केयर, हमको यहाँ पे पहला नंबर 2 दिखा, मतलब पहला रेड होगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन, मैंने रेड हटा के ग्रीन लगा दिया, तो पहला डिजिट क्या आएगा 5, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी, राइट। तो यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, तो इजी क्वेश्चन है, इट इज एक्सट्रीमली इजी। ओके, देयर इज नो नीड टू राइट दिस डाउन, इट इज सिंपल, यू जस्ट नीड टू नो दैट कलर कोडिंग स्कीम। अगला क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, in the circuit shown a 4 wire potentiometer is made of a 400 centimeter long wire, so there is a 4 wire potentiometer, why 4 wire, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा 4 wire potentiometer है आपके पास, is made up of a 400 long wire, 400 centimeter long wire, तो total length of potentiometer wire is 400 centimeter, total length of potentiometer wire, ये याद रखना। ओके, विच एक्सटेंड बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियोमीटर वायर एक्सटेंड बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है, राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 4 वायर पोटेंशियोमीटर, आपको याद है पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन, व्हाट वाज बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपके पास एक वायर होता है, आप उसको ऐसा फोल्ड करते हो, एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, और यहाँ पे आप एक्सटर्नल सेल कनेक्ट करते हो। तो जब मैंने बोला 4 वायर पोटेंशियोमीटर, तो आई टोल्ड यू ये एक, दिस इज नॉट पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज एक्सटर्नल सेल, तो 4 वायर मतलब 1, 2, 3 और 4, दिस इज 4 वायर पोटेंशियोमीटर। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझना जरूरी है, यू हैव 4 वायर्स ओवर हियर, तो 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज दिस, which is total length is 400 सेंटीमीटर, उसमें से ऊपर 50 है, मतलब ऊपर पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, दिस इज 100, 100, 100 एंड 100, यू सी ये 4 वायर है, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 100 एंड दिस इज आल्सो 100, वो 50 क्या है आगे समझ में आएगा। ओके, गुड, देन आगे क्या बोला है आपको, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.01 ओहम पर सेंटीमीटर, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पर सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना, 0.01, तो पहले ऐसा करेंगे, वी विल फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अगर आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, that will give you total resistance. What is this value? This is 0.01 ohm per centimeter, length कितना था 400 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में थे, this is ohm per centimeter, this is सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, तो you need to pay attention over here, this is 10 power -2, this is 400, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, तो ये जो आपके पास पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। आगे, इफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एज शोन विथ जॉकी जे एट 50 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये एक वोल्टमीटर है, हमने इसको कनेक्ट किया और जॉकी जहां टच कर रहा है वो ए पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पे है, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू फ्रॉम एंड ए, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी, expected reading of the voltmeter,
how do you find out expected reading of the voltmeter? Expected reading of the voltmeter will be, good question, how do you find out expected reading of the voltmeter? कैसे फाइंड करेंगे? Do you remember something called as potential gradient? Potential gradient क्या था, याद है क्या? याद है? नहीं याद है? Potential per unit length, okay, V by N. So there are two methods of solving. एक तो पहले potential gradient find कर लो, थोड़ा लेंदी है. एक shortcut route है. Shortcut route is this. V is equal to IR. किसका R? 50 सेंटीमीटर लेंथ का R. क्योंकि वोल्टमीटर ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जहां कनेक्ट करे उसका लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर. तो कैन यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर? यस. कैसे? जैसे ऊपर किया वैसे. तो कैसे फाइंड करोगे? आई 50 सेंटीमीटर इंटू हाउ मच रेजिस्टेंस, राइट? तो ये आ गया आपका 5. दिस इज 5, राइट? 0.5. This is 0.5, right? Now, how do you find out I? I कैसे find करोगे? That is what you need to know. How do you find out I? Total current in the circuit. So, if I treat this as a single wire, इस सिंगल वायर का रेजिस्टेंस होगा जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है. कितना है वो? 4. तो दिस इज 4 ओहम. ये 4 ओहम, ये 1 ओहम और ये हाफ एंड हाफ. हाफ एंड हाफ इज 1. 1 plus 1, 2 and 4. दिस इज 6 ओहम इन टोटल. दैट 6 ओहम इज इन सीरीज. देखो ये दोनों सीरीज में है. मैंने अभी भी बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, R1 plus R2 plus R3 plus R4. अगर सेल सीरीज में है तो रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में होते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो ये 0.5 और 0.5 इन सीरीज. 0.5 plus 0.5 1 और ये 1 2 और ये 4 6. ओके, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल पुट इट डाउन हियर. नाउ 0.5 ohm, 0.5 ohm, 1 ohm and 4 ohm किसका है? ये पोटेंशियोमीटर वायर का है. R in series. 4 ohm belongs to potentiometer wire. 1 ohm external resistance है. 0.5 सेल के internal है. Therefore, R equivalent total resistance of the circuit is 0.5 plus 0.5 plus 1 plus 4, that is 6 ohm. Correct? Now, if you have total resistance, equivalent resistance as 6 ohm, from that formula, V is equal to 0.5 into I. But I is external potential that you apply by R. V is equal to IR. So I is equal to V applied by R equivalent. What is V applied? 1.5 plus 1.5 सीरीज में थे तो टोटल कितना? 3. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 plus 1.5 डिवाइडेड बाय 6. तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 3 by 6. 1 जा 2 जा. 0.5 itself is 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4. How much is 1 by 4? 0.25 है क्या? 0.25. ऑप्शन P. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, आपके पास टोटल लेंथ कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का? 400 सेंटीमीटर. आपको पर सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना दिया है? 0.01. तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस निकालो. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अगर आपको पोटेंशियोमीटर अच्छे से समझा है तो मैंने पोटेंशियोमीटर का जब हम थ्योरी हमने स्टार्ट किया था तो तभी बता दिया था पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट जस्ट अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. शुरुआत ही यहां से होती है. इट इज जस्ट अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर
इसके दो एंड्स के अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं विथ अ की, दिस इज पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा और पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, दैट विल गो इन सीरीज। तो इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज। इसका जो भी V होगा, EMF होगा, व्हाटएवर इट इज, राइट। सो टोटल करंट के लिए I is V अपॉन R इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो यही किया हमने, दिस इज जस्ट V अप्लाइड, V अप्लाइड मतलब दिस इज 1.5 प्लस 1.5 3। टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने, 3। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हाफ प्लस हाफ प्लस 1, 2 प्लस 4 6, वेरी गुड। तो 3/6 इज हाफ, करंट तो हाफ है, करंट हाफ है। और इसका टोटल रेजिस्टेंस यू हैव फाउंड आउट। नाउ द थिंग इज, आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग बोला है, वोल्ट मीटर का जो कि कहां टच कर रहा है, 50 सेंटीमीटर लेंथ पे। तो 50 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, 0.01 इंटू 50 कितना आया, 0.5। 0.5 मतलब हाफ, और करंट कितना था, हाफ, हाफ और हाफ 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ऑप्शन बी। So this is how you are supposed to solve. Next question. Okay, easy one. In the figure shown, what is the current drawn from the battery? You are given R1 15, R2 10, R3 20, R4 5, R5 25 and R6 30 and E as 15. तो थोड़ा वैल्यूज लिख लेंगे तो इजी होगा। R1 कितना है, R1 15, R2 is 10, R3, where is R3, 20, R4 is 5, R5 is 25, this is 30। आपको पूछा what is the current, first of all these three are in series, 20 plus 5 plus 25, 50। so this can be replaced by a 50 ohm resistor। so your circuit will look something like this। तो यहाँ पे एक था 15 का, यहाँ पे एक है 10, here you have one which is 30 and this is now 50 and here you have applied E which is 15 volt if I am not wrong, 15 volt। अब ये दोनों they are in parallel, तो इनका जो parallel combination होगा that is R1 into R2 upon R1 plus R2, that is nothing but 500 by ये 10 है by the way, this is 60, cancel 25 by 3, 50 by 6 is 25 by 3। now ओके, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद ये इक्विवेलेंट आया 25 by 3, राइट। तो 25 by 3, 15 और 30 दे आर इन सीरीज अगेन, सो दे आर इन सीरीज अगेन। तो ऐसा करो, R equivalent total resistance in the circuit will be 15 plus 25 by 3 plus 30, 15 plus 30, 15 plus 30 is 45, this is 45, this two, okay। एक स्टेप बढ़ा देता हूं so that you are not confused। तो 15 plus 25 by 3 plus 30, that is 45 plus 25 by 3, 3 into 45, 135 plus 25, 160, 160 by 3, ये आ गया R इक्विवेलेंट। आपको क्या पूछा है, करंट। हाउ डू फाइंड आउट करंट, Ohm's law, right? Ohm's law again, I is equal to E by R। what is E, 15, this is 160 by 3, by 3 ऊपर गया, right। 32 5s are right, correct। 5 3s are and अरे
32 into 5, 320 का हाफ 160, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये कितना है आपका 9/32, 9/32, ऑप्शन नंबर डी। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, something different. Good. A cell of internal resistance R missing, okay, drives current through an external resistance capital R. तो आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, उसको आपने एक सेल कनेक्ट किया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। दिस सेल ड्राइव्स करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ऐसा उन्होंने बोला है, राइट। The power delivered by the cell to the external resistance will be maximum when? थोड़ा मैथमेटिक्स लगने वाला है यहाँ पे, because of course this is question from JEE. तो first of all आपको ये पता होना चाहिए what is power delivered in the circuit formula. 3 formulas of power, कौन कौन से 3? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I don't want to know, I don't want you to say कि work upon time. What is work upon time? I am talking in terms of current and resistance. What is formula? I square R. There are 3 formulas: I square R, V square by R, V into I. पावर के 3 फॉर्मूला, एक भी याद हो गया तो तीनों आ जाएंगे। अगर आपको एक भी याद है, बट V equal to IR, so I equal to V by R put here. Therefore, power equal to V square by R square into R cancel, V square by R. But again, you know how to bring power in terms of V into I, पता होना चाहिए। सिंपल है, वेरी सिंपल। कैसे? ये पावर क्या आया? V स्क्वायर बाय R, तो ऐसा करेंगे, V स्क्वायर को V इंटू V लिखेंगे, V बाय R इज I, तो आ गया। तो 3 फॉर्मूलाज होते हैं पावर के, यू शुड नो ऑल दिस 3 फॉर्मूलाज। देन पावर इज I स्क्वायर R। क्यों I स्क्वायर R? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कहीं मेंशन किया है, दैट इज व्हाई। और ये भी मेंशन किया कि ड्राइव्स करंट, मतलब करंट की भी बात हो रही है, तो आई विल कीप दिस फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर व्हाट इज फॉर्मूला फॉर करंट हियर? करंट हियर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? कैसे फाइंड करोगे अगर ये E है तो? दिस R एंड दिस R, they are in series. What is equivalent resistance? What is total resistance? R plus R. So by Ohm's law, E is equal to I into total resistance R plus R. So I is equal to E upon R plus R. Equation 1, equation 2. Substitute I in the formula for power. तो आपको मिलेगा, therefore you will get from equation 1 and 2, you will get P is equal to I square. I square मतलब E square upon R plus R का स्क्वायर इंटू R। ये बन गया आपका पावर का फॉर्मूला, राइट। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बनाओ, देन पावर डिलीवर्ड शुड बी मैक्सिमम। तो प्रॉब्लम क्या है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। y पे हम पावर प्लॉट कर सकते हैं, x पे हम जो वेरिएबल होगा, पहले तो देखो कि वेरिएबल क्या है। एक बार सेल लगा दिया, सेल बना दिया, उसका E कांस्टेंट, उसका R भी कांस्टेंट, राइट। और इस इक्वेशन में E और R ये कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन सा है फिर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मेरी मर्जी, मैं निकाल के दूसरा लगा दूंगा, तो व्हाट इज वेरिएबल? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, राइट। तो मैं यहाँ पे R प्लॉट कर सकता हूँ। गुड। अब फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, आपने सीखा है y इज इक्वल टू f ऑफ x। y पे क्या है? P। पावर इज अ फंक्शन ऑफ
रेजिस्टेंस R, करेक्ट। अगर ऐसा फंक्शन हो या फिर ऐसा फंक्शन हो, चाहे वैल्यू फंक्शन की मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मिनिमम या मैक्सिमम पे मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक स्लोप एट मैक्सिमम और मिनिमम, राइट, टेंजेंट मतलब व्हाट विल बी स्लोप हियर फॉर मिनिमम और मैक्सिमम? स्लोप क्या होता है? What is slope of line parallel to x-axis? 0. Why 0? How do you find out slope? There are 2 to 3 methods of finding out slope. Slope कैसे find करते हो? Number 1, slope. What is slope? dy by dx मतलब y2 minus y1 upon x2 minus x1. अरे इस लाइन पे या इस लाइन पे दो पॉइंट ले लो, टेक पॉइंट ए, टेक पॉइंट बी। ए पॉइंट के लिए x1, ये आ गया आपका x2, लेकिन y वैल्यूज तो सेम है, राइट? तो y2 माइनस y1 कितना आएगा? 0। तो स्लोप कितना आएगा? 0। फंक्शन मैक्सिमम हो या फंक्शन मिनिमम हो, लेट अस से CD, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालते हो तो वो 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? तो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम के लिए स्लोप क्या आएगा? 0। dy बाई dx क्या आएगा? 0। पर हमारे पास y क्या था? p, और x क्या था? तो ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए मैक्सिमम के लिए, राइट? करेक्ट। जस्ट टू गो वन स्टेप अहेड, उसका हमारे क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू, अगर ऐसा लाइन हुआ तो व्हाट इज स्लोप? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पे दो पॉइंट लेता हूं, लेट अस टेक E पॉइंट एंड F पॉइंट, y2 and y1 they are different, but x2 and x1 they are same. Denominator becomes 0. Something upon 0 is infinity. तो इसका मतलब line parallel to x-axis has 0 slope, line parallel to y-axis has infinite slope, मतलब slope increases from as you go from x to y. अभी हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ dp by dr इक्वल टू 0 की जरूरत है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो फॉर पावर टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, ऑफ कोर्स, फिर आप बोलोगे मैक्सिमम के लिए भी dp by dr इक्वल टू 0, मिनिमम के लिए भी 0, तो इसके लिए सेकंड टेस्ट होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। जिसका मैथमेटिक्स है उनको पता होगा, जिनका नहीं है डोंट वरी। ओके, सो फॉर p टू बी मैक्सिमम dp by dr शुड बी 0। अब लो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो, p इज e स्क्वायर अपॉन r प्लस r होल स्क्वायर इनटू r, तो d by dr of p was e square upon r plus r square into r equal to 0। e square कांस्टेंट, मैंने पहले ही बताया, कांस्टेंट इसके बाहर यहां से यहां पे एंड डिसअपियर। ओके, गुड, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिपेंड्स हाउ यू सॉल्व दिस, आपके ऊपर है। There are many ways of solving. U by V भी लगा सकते हो। Do you know what is denominator, numerator by denominator का derivative? What is derivative of some numerator U upon V? What is the rule? What is the rule? Denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator square. This is the rule. या तो ऐसा करो, या फिर अगर आपको कैलकुलेशंस और सिंपल करने हैं, देन
right? Then dr d by dr, okay, इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा. If I want to take this inside, what you have to do? ये स्क्वायर है, राइट? ये स्क्वायर नहीं है, क्या करेंगे? How can you take it inside? मैथमेटिक्स के बेसिक्स बहुत वीक है. सो एनीवेज, मुझे सिंपल बट लेंथी मेथड बताना पड़ेगा बिकॉज योर बेसिक्स एक्सट्रीमली वीक. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. एनीवेज, वो अप्लाई कर लेते हैं. डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर स्क्वायर है तो उसका वापस से स्क्वायर इक्वल टू 0. कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टर्म वहां जाके वैसे भी मल्टीप्लाई होके 0 होगा. डजंट मैटर. दिस इज 1, तो ये r प्लस आर स्क्वायर माइनस r, इसका डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए. सम फंक्शन रेज टू n का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स, मतलब n, r प्लस r रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ r प्लस r. ये वैसे भी 1 आएगा, क्यों? dr by dr इज 1 और स्मॉल r तो कांस्टेंट था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो दिस इज एनीवेज 1. ये 1 है. यहां तक क्लियर? तो नाउ यू विल गेट r प्लस r ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2r r plus r equal to 0. So this will be r plus r bracket square minus 2r square plus 2r into small r equal to 0. Correct? ये r plus r bracket square, a plus b bracket square, इसलिए मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर होते तो आई टेल यू, यू विल गेट ऑप्शन बी. बताता हूं कैसे, बट यू नीड टू वर्क ऑन मैथमेटिक्स. इवन दो इफ यू आर अपियरिंग फॉर नीट, यू नीड टू डू दिस. आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर एंड प्लस 2r इक्वल टू 0. करेक्ट? ये दिस इज माइनस आर स्क्वायर. ओके, तो आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे आगे? व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? एक गलती हुई है, दैट इज व्हाई यू नीड टू पे अटेंशन. यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे माइनस. अभी अगर यहाँ पे माइनस है तो गॉन एंड गॉन. अगर ऐसा है तो दिस इज नॉट देयर. अगर ऐसा है तो दिस इक्वल टू इज ओवर हियर. अगर ऐसा है तो यू हैव स्मॉल आर इक्वल टू, मैंने पहले बता दिया था स्मॉल आर इक्वल टू क्या मिलेगा. हाउ डू यू नो? बेसिक मैथमेटिक्स, हाउ डू यू नो? अभी यहां तक तो आई होप देयर शुड बी नो इश्यूज. हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया? पावर इज आई स्क्वायर आर. आई जस्ट बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, यू गेट आई ई बाय आर प्लस आर. सब्स्टिट्यूट हियर, आपको पावर का इक्वेशन मिल गया. पावर मैक्सिमम होने के लिए डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल विच इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर शुड बी 0. यू कैनॉट टेक स्मॉल आर, यू कैनॉट टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर क्योंकि वो कांस्टेंट है. यू कैनॉट टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ई क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज 0. अब प्रॉब्लम था यहां पे. गुड. तो आपको ये डेरिवेटिव 0 मिलना चाहिए. ई स्क्वायर को हमने पहले ही बाहर निकाल के वहां शिफ्ट करके खत्म कर दिया था, तो इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं. राइट? करेक्ट. बाय लॉजिक, इफ आई पुट r as 1000 r, 1000, this is 1000 r,
अपॉन 1000 प्लस 1, 1001 आर का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन राइट डाउन व्हाट इज स्मॉल आर, 1 बाय आर बाय 1000, आर बाय 1000, आर प्लस आर बाय 1000 स्क्वायर। कुछ भी कर लो, ये डेरिवेटिव जीरो नहीं आता। It is not going to be zero. Do anything you want, it will never be zero. Okay, if I put option B, what is option B? Small r equal to capital R. तो ये देखो d dr of r upon r plus r का square. What is this? r upon 2r square मतलब कितना? 4r square मतलब 1 by 4r. So now you need to think about this one. Otherwise, other way around, derivative of, ध्यान देना यहाँ पे, small r upon small r plus 2r का square. This is derivative of 1 upon फटाफट, we don't have time. अरे 4r, wasn't it constant? Yes, derivative will be zero. तो थोड़ा ये हायर लेवल है, so it's okay if you don't know this, that is fine. ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे. You will have to perform these steps. और एक मेथड है, there is one more method which is just to simplify taking derivatives. अब वो कैसे करना है वो आपको याद होना चाहिए. Have you ever in 11th standard variation of g with height, ऐसा एक फॉर्मूला देखा है क्या आपने? वेरिएशन ऑफ g with height का फॉर्मूला देखा है आपने? वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा तो याद दिला देता हूं. It was something like this. देखा ऐसा फॉर्मूला? Yes. Can you compare? Can you see? Correct. फिर वहां पे आपने बोला था if h height is very small compared to radius, you use binomial expansion. तो यहाँ पे भी तो internal resistance you can take very small compared to external resistance and apply binomial, or you can simplify your calculations. Anyways, कोई बात नहीं, we will not go into this much of details, but if you don't want to go into details, you have to do all this. Conceptually क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया. आगे डेरिवेटिव का पार्ट है.